Welcome to logical reasoning section, analysis of logical reasoning section on mock 12. अब ये first passage है, this passage reports a particular incident. So एक जगह पे author begin कर रहा है by saying that the fine line between culpable homicide and murder under Indian penal law is subject to endless analysis. और ऐसा ही एक केस देखा गया था mob lynching का, where 4 people were sentenced to 7-year imprisonment for lynching a Muslim dairy farmer. लेकिन आगे जाके ऑथर बोल रहा है कि जो वर्डिक्ट दिया गया वो वर्डिक्ट सही नहीं था. ये देखो यहाँ पे वो बोल रहा है the assailants were only found guilty of culpable homicide not amounting to murder and wrongful restraint raises some concerns कि ये जो verdict award किया गया है, this verdict or conviction is not correct. वो कह रहा है कि अगर murder के charges press किए जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता. आगे बोल रहा है रकबर खान्स family is justifiably saddened by both acquittal of the person they suspect to be the prime accused and 7-year prison sentence. क्योंकि कुछ लोगों को imprisonment मिल गया 7 years का, लेकिन जो prime accused था he was freed. He was not given any or he was not convicted or indicted because of lack of evidence. आगे कह रहा है however the court did not consider बोल रहा है the police relied on some telephonic conversation between acquitted VHP leader and the assailants to nab him as prime suspect. However, court did not consider this as sufficient evidence. कुछ telephonic conversations मिली थी लेकिन court ने उसको sufficient evidence नहीं माना. और next वो बोल रहा है in deciding that deadly assault did not amount to murder, the trial court concluded that assailants neither intended to cause death. उनको नहीं पता था कि उनके असॉल्ट से डेथ हो जाएगी और उनका इंटेंशन भी ऐसा नहीं था. सो दैट्स व्हाट दिस पैसेज इज ऑल अबाउट. अब देखो फर्स्ट बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट इफेक्टिवली स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट दैट असेलेंट्स इन केस ऑफ रकबर खान शुड हैव बीन कन्विक्टेड ऑफ मर्डर, कि उसके ऊपर मर्डर के चार्जेस जो थे वो प्रेस होने चाहिए थे rather than culpable homicide. So option C आपका आंसर होगा. A piece of legislation that defines mob lynching as murder under Indian penal law. कि एक ऐसा लेजिस्लेशन है जो मॉब लिंचिंग को मर्डर की कैटेगरी में क्लासिफाई करता था. दिस एक्चुअली स्ट्रेंथन्स. 87 का देखिए इन डिसाइडिंग दैट डेडली असॉल्ट डिड नॉट अमाउंट टू मर्डर, द ट्रायल कोर्ट कंक्लूडेड दैट assailants neither intended to cause death nor knew their assault was likely to cause death. Which of the following options would weaken the conclusion of the trial court? अब यहाँ पे स्टेटमेंट है कि ना उन्हें पता था कि उनके एक्शन से मर्डर होगा, ना ऐसा वो चाहते थे. तो इसको वीकन करने का क्या, एक मेडिकल रिपोर्ट दिखाती है कि ऐसी इंजरीज तभी हो सकती है जब कोई इंटेंशनली ऐसे हर्ट करे. सो ऑप्शन डी जो है वो करेक्टली इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को वीकन कर रही है. 88 की बात करते हैं. रेफर टू द लाइंस द assailants were only found guilty of culpable homicide not amounting to murder and wrongful restraint raises some concerns. A conviction of murder would have carried minimum sentence of life imprisonment. What flaw can be detected in the reasoning of this particular argument? कि ये जो verdict दिया गया है ये गलत है. मर्डर के चार्जेस जो थे वो प्रेस होने चाहिए थे. इसमें क्या फ्लॉ है? हमने ये मान ही लिया है कि वाकई में उन लोगों ने मर्डर किया होगा. ठीक है. सो ऑप्शन सी, द आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन द अनवारंटेड assumption that assailants intended to cause death or knew their assault was likely to do so. आई होप आपको ये समझ में आया. 89 की बात करते हैं. which among the following can be inferred from the passage? इसमें से क्या हम लोग पैसेज से इन्फर कर सकते हैं? सो ये देखिए ऑप्शन सी, डिस्टिंक्शन बिटवीन कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर इज ऑफन चैलेंजिंग इन द केसेस ऑफ मॉब लिंचिंग इन इंडिया. कि ऐसे केसेस में हम यही इन्फर कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा हुआ तो डेफिनेटली ये इन्फर कर सकते हैं कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर में जो फाइन लाइन है दैट्स सब्जेक्ट टू डिबेट एंड वो चैलेंजिंग हो जाता है बहुत ज्यादा. सो ऑप्शन सी शुड बी योर आंसर. एंड 90th, in consideration of intricate distinction between culpable homicide and murder in Indian Penal Code and the given case scenario of mob lynching leading to 7-year imprisonment verdict, which of the following assertions best evaluates the underlying argument and implications in the given context? So ये बोल रहा है कि ये जो distinction है between culpable homicide and murder,
और जिस तरीके से ये इम्प्रिजनमेंट दिया गया है, वर्डिक्ट दिया गया है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट बेस्ट इवैल्यूएट करता है? तो देखो ऑप्शन बी जो है वो आपका आंसर होगा कि कोर्ट का जो ये इंटरप्रिटेशन है दैट कुड लीड टू that could lead to impunity for mob violence, कि लोग ऐसे और encourage होंगे mob violence करने में. So यही best suitable assertion है. So option C should be your answer. Alright, so now we move to passage number 2. Passage number 2 में ये क्या कह रहा है कि जो ये new parliament building थी that was scheduled to be inaugurated on May 28 could have been an occasion of national unity, लेकिन unfortunately इस बार भी जो पॉलिटिक्स है that seems to be taking center stage. Opposition parties have announced that they would boycott the event, and क्यों? Because President is not given an opportunity to inaugurate the parliament. Prime Minister, who's head of government, is doing so. And opposition के इस argument में merit भी है. लेकिन बॉयकॉट जो है, देखो ऑथर क्लियरली यहाँ पे थोड़ा बहुत ऑपोजिशन को सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहा है. देयर इज मेरिट इन ऑपोजिशंस आर्गुमेंट. हालांकि वो ये भी कह रहा है कि ये जो रिस्पॉन्स है दैट्स एक्सट्रीम. गवर्नमेंट कुछ कह रही है, ऑपोजिशन कुछ कह रही है, गवर्नमेंट फिर रिवर्ट भी कर रही है. In a joint statement, the opposition has said this is undignified act. This undignified act insults high office of the president and violates the letter and spirit of the constitution, and has specifically mentioned that India has its first woman Adivasi president now. Bharatiya Janata Party ने counter किया ये कह के कि even in the past Prime Minister from one of the opposition parties laid the foundation of Parliament Library, and at that time President was not invited. President did not do it. फिर ऑपोजिशन कह रहा है कि वो वाली सिचुएशन और ये वाली सिचुएशन कंपेरेबल नहीं है, ठीक है. बट देन अल्टीमेटली ये कह रहा है टर्निंग अ माइलस्टोन इन द जर्नी ऑफ नेशन इनटू पार्टिसन इवेंट इज सर्टेनली बैड ऑप्टिक्स, बट व्हाट्स मोर वरिसम इज द सब्सटेंशियल डैमेज दैट इज हैपनिंग टू डेमोक्रेसी. इसकी वजह से डेमोक्रेसी को डैमेज हो रहा है. आईनी कैन नॉट बी स्टॉकर कि हम लोग डेमोक्रेटिक सिंबल को इनॉग्रेट करने जा रहे हैं, डेमोक्रेसी को ही हार्म पहुंच रहा है. सो दैट्स द आयरनी. आगे बोल रहा है दो अ न्यू ग्लिटरिंग फिजिकल स्पेस फॉर डेलिब्रेशन इज ओपनिंग, इंटरेक्शंस बिटवीन द गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशन आर आइदर एब्सेंट और हॉस्टाइल. Democracy is not about buildings and statues, but about deliberations and search for common ground. That's what democracy is. The ascent of executive power at the cost of parliamentary authority is a growing concern in many democracies, and India is sadly witnessing the same. The new building is part of reconstruction of the Central Vista, which is seat of the government of India. ठीक है. So I hope आपको ये समझ में आया. Now we'll move to question number 91. तो बोल रहा है which among the following options captures a central idea of the passage. So देखो the central idea जो है, author argues that political discord and the ascendancy of executive power are negatively impacting democratic deliberations and national unity. ठीक है. 92 की बात करते हुए which among the following can be reasonably inferred from the passage, की passage से क्या infer किया जा सकता है. आप अगर देखें तो ऑप्शन बी कह रहा है inauguration of new parliament building is being compromised by escalating political conflict which has profound implications for state of democracy in India. ठीक है. तो आई होप आपको ये समझ में आया. अच्छा देखो अब ये बोल रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज. इनमें से तीन ऑप्शंस जो है इन्फर किए जा सकते हैं. क्या इन्फर नहीं किया जा सकता? ऑपोजिशंस बॉयकॉट ऑफ इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज सीन एज अ मेजर इंसिडेंट ऑफ पॉलिटिकल डिस्कॉर्ड. डेफिनेटली. बी बोल रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज एन अटेम्प्ट टू शिफ्ट एग्जीक्यूटिव पावर एंड अंडरमाइन पार्लियामेंट्री अथॉरिटी. नया पार्लियामेंट बनाया जा रहा है, इट डज नॉट अंडरमाइन द पार्लियामेंट्री अथॉरिटी. तो इसीलिए ये इन्फर नहीं किया जा सकता एंड यही आपका आंसर होगा. गवर्नमेंट एंड ऑपोजिशंस रिलेशनशिप इज डिटेरियोरेटिंग. डेफिनेटली. डिसीजन टू इनॉग्रेट न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बाय द पीएम इंस्टेड ऑफ प्रेसिडेंट अडहेयर्स टू हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट. बिल्कुल हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट हमें यहाँ पे दिखाई देता है क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है. गवर्नमेंट का चार्ज यही था. ठीक है. अच्छा इसके बाद 94 विच ऑफ द फॉलोइंग if true would most strengthen the argument that inauguration of new parliament building is not simply a partisan event but rather represents significant threat to democratic process.
देखो, द एस्केलेटिंग ट्रेंड ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ओवरराइडिंग पार्लियामेंट्री अथॉरिटी हैज बीन ऑब्जर्व नॉट जस्ट इन इंडिया बट ग्लोबली अक्रॉस मेनी डेमोक्रेसीज, कि और भी बहुत सारी जगहों पे इस तरीके का इवेंट जो है वो देखा गया है। तो डेफिनेटली रिप्रेजेंट सिग्निफिकेंट थ्रेट टू डेमोक्रेटिक प्रोसेस, क्योंकि दूसरी कंट्रीज में भी ऐसा थ्रेट हुआ था, ठीक है। सो दैट बेस्ट स्ट्रेंथन्स दिस आर्गुमेंट। 95, which of the following if true would create more support for the argument that ascent of executive power at the cost of parliamentary authority is growing concern in many of democracies and India is sadly witnessing the same। तो इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है तो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन इनहेरेंटली सपोर्ट्स सुप्रीमेसी ऑफ द एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ग्रांटिंग देम पावर्स टू ओवररूल सर्टेन पार्लियामेंट्री डिसीजन। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस तरीके से बनाया गया है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच को ज्यादा पावर दे रहा है टू ओवररूल पार्लियामेंट्री डिसीजन। ये इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सपोर्ट करता है, स्ट्रेंथन करता है। आई होप आपको ये समझ में आया। ऑलराइट, नाउ पैसेज नंबर 3, हम लोग पैसेज नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो पैसेज नंबर 3 में ऑथर ने ये असर्ट किया है कि इंडिया की जो पोजीशन है ऑन रशिया यूक्रेन वॉर वो कंफ्यूजिंग है। एंड ऑथर ये भी बोल रहा है इंडिया डजंट नो, देखो ये बोल रहा है आई फियर we either have not thought what we are saying and are simply saying things that sound right, or we are contradicting ourselves and even creating precedents which if used against us we deeply regret। कि हम या तो नहीं समझ में आ रहा हम किस तरीके से बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, बस बोले जा रहे हैं, अपने आप को सेल्फ राइटियस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर हम अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं और इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर ये प्रेसिडेंट हमारे अगेंस्ट यूज हुआ वी वुड डीपली रिग्रेट। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे ऑथर इज नॉट वेरी हैप्पी विद द पोजीशन इंडिया हैज टेकन ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। आगे बोल रहा है किस तरीके से ये सारी चीज़ें अनफोल्ड हुई, ये सारी चीज़ें बता रहा है आपको। फिर नेक्स्ट बोल रहा है पीएम सेड इट इज़ नेसेसरी दैट ऑल कंट्रीज रिस्पेक्ट यूएन चार्टर। एंड ऊपर वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की को प्राइम मिनिस्टर ने कहा he was invited that he sees Ukraine crisis as matter of humanity and human values. Sounds good, no doubt. But then how come we are unable to criticize a country that has deliberately breached humanity and human values? फिर वापस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि everybody has to respect UN Charter। ठीक है, raise your voice together against unilateral attempts to change status quo. Again, the perfect thing to say. But guess which country has violated UN Charter and the sovereignty and integrity of UN member country? And guess which country has failed to raise its voice? It's Russia. That has broken international law and sovereignty and territorial integrity of other country, and it's India that has failed to raise its voice against Russia's aggressions in the Ukraine. So I hope आपको ये समझ में आया। Now हम देखते हैं यहाँ पे बोला which among the following options captures the central idea। So central idea की अगर बात करें, the passage critically examines contradiction between India's verbal statements and its failure to take action against a country invading Ukraine। So the correct answer is boy। बी जो है इंडिया का इंडिया जो कहता है और जो करता है उसमें कॉन्ट्रोडिक्शन है, उसको इसकी बात कर रहा है। 97 द कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट अबव कैन नॉट बी ट्रू unless which of the following is true। तो एक तरीके से assumption का क्वेश्चन है। So without C you cannot have this particular argument। The country invading Ukraine has violated UN Charter, international law and sovereignty and territorial integrity of Ukraine। फिर नेक्स्ट देखते हैं, ये बोल रहा है the author presents an argument asserting that India's position regarding crisis in Ukraine is not only confusing but also potentially harmful due to perceived inconsistency between public statements and actions। कि इंडिया की जो पोजीशन है it's not only confusing लेकिन harmful भी है। This argument is based on premise that India has not criticized invading country and has not vocally supported Ukraine, despite Indian Prime Minister's statements emphasizing the importance। इसको वीकन क्या करेगा? क्या तो स्टेटमेंट है कि इंडिया ने कोई स्टेप्स नहीं उठाए, जो वो कह रहा है और जो कर रहा है वो डिफरेंट है। अब इसको वीकन करना है तो वीकन क्या बोल के करूंगा? इंडिया हैज बीन वर्किंग बिहाइंड द सीन्स टू ब्रोकर पीस टॉक्स बिटवीन यूक्रेन एंड इन्वेडिंग कंट्री। कि इंडिया अपनी तरफ से बिहाइंड द कर्टन काफी सारी चीजें कर रहा है। सो ऑप्शन ए शुड बी योर आंसर। 99 की बात करते हैं, ये क्या बोल रहा है? व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू अग्री विद?
ऑथर किससे अग्री करेगा कि पीएम मोदी के जो स्टेटमेंट्स है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है? सो ऑप्शन सी एग्जैक्टली यही बोल रहा है। एंड 110 की बात करते हैं, विच व्हाट इज पोटेंशियल आर्ग्यूमेंट दैट कुड स्ट्रेंथन ऑथर्स पोजीशन रिगार्डिंग इंडिया स्टैंड्स ऑन यूक्रेन क्राइसिस। सो यहाँ पे जो इंडिया का जो पोजीशन है, मतलब ऑथर का जो पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करना है। तो द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल पास अ रेजोल्यूशन कंडेमनिंग द इन्वेजन ऑफ यूक्रेन एंड इंडिया सपोर्ट ऑफ दिस रेजोल्यूशन वुड डेमोन्स्ट्रेट कंसिस्टेंसी, लेकिन इंडिया ने ऐसा किया नहीं। सो द करेक्ट आंसर इज बॉय। आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं। आप देखो पैसेज नंबर 4, ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से फुकुशिमा डिजास्टर जो 2011 में हुआ था, उन्होंने उस पर्टिकुलर डिजास्टर ने बहुत सारी कंट्रीज को रिकंसिडर करने पे मजबूर कर दिया कि न्यूक्लियर पावर के साथ हमें जाना है या नहीं जाना। जो प्रोपोनेंट्स है वो आगे करते हैं, इट्स क्लीन एफिशिएंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ पावर, ग्रीन हाउस गैसेस कम है, ठीक है। एडिशनली इंडिया की जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है, इकोनॉमी जो है वो दैट नेसेसिटेट्स डिपेंडेबल एनर्जी सप्लाई एंड न्यूक्लियर पावर इन सारी चीज़ों में हेल्प कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, सो ये कौन थे? दे वर प्रोपोनेंट्स। लेकिन जो क्रिटिक्स है, दे हाईलाइट द इनॉर्मस न्यूमरस चैलेंजेस दैट अकम्पनी। फर्स्टली क्या चैलेंज आता है? दे आर एक्सपेंसिव टू कंस्ट्रक्ट। फिर वेस्ट मैनेजमेंट पे ध्यान देना होता है। लॉन्ग टर्म स्टोरेज जो है दैट में पोजेस हेल्थ एंड एनवायरमेंटल रिस्क्स एंड पोटेंशियल फॉर एक्सीडेंट्स सच एज फुकुशिमा अंडरस्कोर्स इनहेरेंट डेंजर्स की भाई प्रॉब्लम तो है। तो इंडिया जो करंट एनर्जी मिक्स है दैट्स हेविली रिलायंट ऑन कोल एंड जो उससे पोल्यूशन होता है और क्लाइमेट चेंज एग्जैस्परेट होता है। न्यूक्लियर एनर्जी कुड सर्व एज वायबल ऑल्टरनेटिव टू रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स। हाउएवर कंट्री को केयरफुली, देखो ऑथर ये नहीं बोल रहा कि आप न्यूक्लियर पावर को छोड़ ही दो, बट देन कंट्री मस्ट केयरफुली वे बेनिफिट्स अगेंस्ट कॉस्ट्स एंड रिस्क्स। और जो भी डिसीजन लेना है उसमें सारी चीज़ों को कंसिडर करके आगे चलना चाहिए। आपको पॉलिसीज इस तरीके से बनानी चाहिए कि रिस्क कहीं पर भी नहीं आए। न्यूक्लियर एनर्जी प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मूव टुवर्ड्स क्लीनर पावर। द फाइनेंशियल एनवायरमेंटल सेफ्टी challenges cannot be ignored as India continues to develop its infrastructure। हमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। So author nowhere says nuclear power should not be used, it's just that author says कि ध्यान से यूज़ करो, ठीक है। So हम देखते हैं which among the following options captures the central idea of the passage? Option D, India's nuclear power use needs careful analysis। ठीक है। फिर 102, which among the following is author most likely to agree with? India should thoughtfully evaluate benefits and risks of nuclear energy। I hope आपको ये समझ में आया। Next 103 की बात करते हैं। So देखना, conclusion of the argument above cannot be true unless which of the following is true? A diverse energy mix that includes renewables and increased efficiency measures is feasible। तो हम क्या बोल रहे हैं कि अभी जो हमारा जो एनर्जी मिक्स है दैट्स हेविली डिपेंडेंट ऑन कोल, पोल्यूशन होता है एंड क्लाइमेट चेंज को एग्जैस्परेट करता है। सो इसीलिए न्यूक्लियर पावर को हमको उसमें रखना चाहिए। सो डाइवर्स एनर्जी मिक्स दैट इंक्लूड्स रिन्यूएबल्स एंड इंक्रीज एफिशिएंसी मेजर्स इज फीजिबल एंड कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू। जब तक ये ट्रू नहीं होगा तब तक हम कह ही नहीं सकते ना कि हम न्यूक्लियर पावर को यूज करना चाहते हैं एंड क्लाइमेट चेंज को भी रोकना चाहते हैं। So I hope आपको ये समझ में आया। Next बोल रहा है which of the following if true would most strengthen the argument for diverse mix that includes renewables and increased efficiency measures। So diverse energy mix that includes renewables and increased efficiency measures can significantly reduce greenhouse emissions। तो ये definitely एक support दे रहा है। And all of the following can be inferred from the passage except देखो सीधा बड़ा ही सिंपल सा इसका आंसर है, कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इन इंडिया हैज बीन halted। Nobody says, it's just that Fukushima disaster has forced nuclear power generation economies to reconsider if they want to keep involving nuclear energy in their energy mix। But then halt हो गया इंडिया में, ऐसा कहीं पे भी नहीं कहा। So I hope आपको ये समझ में आया। Alright, so now we move to passage number 5। अब देखो passage number 5 जो है
इसका आर्ग्यूमेंट बड़ा ही सिंपल है दैट इंडिया इज गोइंग टू सरपास चाइना एज वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलस नेशन बाय 2027 एंड ऐसा जो पर्टिकुलर इवेंट है वो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस दोनों ही लेके आते हैं. So India need to treat the situation very carefully and to harness the potential, India needs to go for two-pronged approach. ठीक है, तो वो दो अप्रोच क्या है वो आपको यहाँ पे बता रखी है. फिर बोल रहा है which one of the following is an assumption on which conclusion depends. देखो वो बोल रहा है कि चैलेंज है और उसको हम अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. तो चैलेंजेस पोज्ड बाय रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी इफेक्टिवली एड्रेस्ड थ्रू पॉलिसी मेजर्स, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि हमें ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट करनी है. तो चैलेंजेस कैन बी एड्रेस्ड थ्रू पॉलिसी मेजर्स, ये आपका आंसर होगा. 107 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू वुड मोस्ट इंट्रिकेटली स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट दैट की टू इंडियाज बर्जनिंग पॉपुलेशन बीइंग अ बून और बीन लाइज एन इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. तो कि ये एक चैलेंज बनेगा या अपॉर्चुनिटी बनेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? इफेक्टिव मैनेजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, सो आप अगर यहाँ पे देखें तो ये बोल रहा है कि इसको strengthen करना है. तो several nations with vast population have successfully navigated their growth by implementing and maintaining policies analogous to those proposed for India, also ensuring sustainable or sustained economic advantage. Next देखें, which of the following if true would most effectively destabilize the argument, मतलब weaken that strategic investments in education, healthcare, infrastructure can optimally prepare. ठीक है, India's workforce for national progression, कि अगर पॉलिसीज ढंग से इम्प्लीमेंट किया जाए तो इंडिया कैन प्रोग्रेस, इसको वीकन करना है. सो वीकन तो एक ही चीज करेगा, कंसिडरेबल सेगमेंट ऑफ इंडियन वर्कफोर्स कॉन्सेंट्रेटेड इन द इनफॉर्मल सेक्टर, और वो गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स, इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट्स है उसके स्कोप से बाहर है. तो डेफिनेटली आप जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट करोगे वो पॉलिसीज जो है इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी. फिर देखें which among the following is author most likely to agree with. author किससे agree करेगा? Policy makers must adopt comprehensive approach that address both opportunities and challenges posed by rapidly growing population. यही आपका आंसर होगा. And which among the following best captures central idea of the passage? तो देखो, India's accelerated population presents blend of opportunities and challenges, necessitating the deft management to tap into full potential. I hope आपको ये समझ में आया. So now you can move to next section. Thank you.